राइट क्लिक भारत में मैं नुसरत जहां आप सबका स्वागत करती हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हाल ही में मनाया गया है हुबली में उर्स मस्तान शाह बाबा का, जिसमें बहुत सारी नामी ग्रामी हस्तियां शामिल रहीं, जैसे कि एमएलए प्रसाद अभैया और हुबली धारवाड़ कांग्रेस लीडर अल्ताफ हुसैन हल्लूर। माइनॉरिटी उर्दू डिपार्टमेंट के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली, हाशिम इंडसगिरी, मुन्ना कित्तूर और तनवीर कित्तूर की मौजूदगी में इस फंक्शन का आगाज हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी नामी ग्रामी हस्तियां मौजूद रही। प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी, एडवोकेट रश्मि और दीगर उलमाए दीन की मौजूदगी में इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दरमियान हमारे शहर के एमएलए मोहतरम जनाब अभैया साहब मौजूद हैं और कांग्रेस के लीडर जनाब अल्ताफ साहब मौजूद हैं। वक्फ से जनाब हाशिम इंडसगिरी और हमारे मशाइख में मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब मौजूद हैं। आप तमाम बुजुर्ग और ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं। जैसा कि हमें मालूम हुआ कि मस्तान बाबा के उर्स के मौके पर आपने लंगर का एहतमाम किया है। मैं इस मौके पर दो बातें बताना चाहूँगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अच्छा मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से लोगों को तकलीफ ना हो, वो अच्छा मुसलमान है। और दूसरी बात हुजूर ने ये फरमाया है, अच्छा मुसलमान वो नहीं है कि खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इसलिए अहले बैत के बारे में, मशाइख के बारे में कहा जाता है, भूखे रहते थे, खुद औरों को खिला देते थे। कितने साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। और तीसरी बात यह है कि इंसान का ज़्यादा गुनाह ज़बान से होता है। इसलिए हमारे हुजूर ने फरमाया, ज़बान को अपने कंट्रोल में रखो। मस्तान बाबा ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಈ ಲಂಗರ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ। ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಏನು ಸಾಧು ಸಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ನೆನಪಿನಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರೀ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಬಾರದು। ಅವರ ಉದ್ದೇಶ, ಅವರ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಅವರು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಂತಹ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ವಿನಃ ಬರೀ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಮಾಜ. ಈ ಸಮಾಜ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು 3 ಹೊತ್ತು 4 ಹೊತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿದು ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಜಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬರೀ ಈಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು ದೇವರನ್ನು 4 ತಾಸು 4 ಟೈಮ್ 5 ಟೈಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮದ ಮತ್ಸರ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕತ್ತಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ದಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಪೈಗಂಬರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಥವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು, ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಥ ಜನಪರವಾದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂಥವು ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक धार्मिक प्रोग्राम है, इसे ये उर्स बोलते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा ये अब सबसे पहले अहमद रजा जो कुछ भी धार्मिक गुरु का जो कुछ भी वो मैसेज रहता है, उर्स का वो मैसेज रहता है, हम लोग वो फॉलो करना। समाज में हम लोग खाली वो आचरण करने से नहीं होता, इसके साथ ही हम लोग खुशी की जाए, जो कुछ भी उनका संदेश है समाज में, वो संदेश हम लोग फॉलो करना। तो आप कहते हैं इससे कम्युनिटी हार्मोनी जो है बढ़ेगी? हाँ 100% Yes, yes, इसमें बढ़ेगी 100%। ये तो इस्लाम समाज में तो ज़्यादा से ज़्यादा ये धार्मिक भावन को थोड़ा ज़्यादा ये रखते हैं, वो हम लोग फॉलो करना। आज यहाँ पर हज़रत मस्तान बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स के मुबारक मौके पर हम तमाम यहाँ पर जमा हुए। बिलखुसूस आज की इस महफ़िल में हमारे साथ हज़रत मौलाना सैयद अहमद रज़ा साहब और हमारे शहर के एमएलए मोहतरम जनाब अब्बैया साहब और कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब अल्ताफ़ हल्लूर साहब और वक्फ बोर्ड से चेयरमैन जनाब हाशिम हेंडसगिरी साहब, मुन्ना ऐनापुरी
और मस्तान बाबा एक कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान, ख़वातीन व हज़रात, बड़े पैमाने पर ये चेयरमैन साहब सब मौजूद थे। मुझे यहाँ हाज़िर होकर बेपनाह रूहानी खुशी हासिल हुई। हमारा जो देश, हमारा जो मुल्क है वो मस्तानों का मुल्क है, फ़कीरों का मुल्क है। और मस्तानों और फ़कीरों की ख़ास बात यह है कि इन्होंने बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ने की कोशिश की। हम अक्सर कहते हैं कि यही इंसान की मेराज है कि इंसान हो जाए, अर्श तक हो नहीं सकती रसाई न सही, यही इंसान की मेराज है कि इंसान हो जाए। हर मज़हब इंसानियत का दर्स देता है, हर मज़हब इंसानियत का सबक हमें सिखाता है। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम मज़हब की बुनियाद पर लड़ते हैं मगर मज़हब के उसूलों पर अमल नहीं करते। हम मज़हब के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं मगर हमारे मज़हब के दिए हुए उसूलों को अगर हम समझ लें, उस पर अमल कर लें, तो ख़ुद ब खुद पूरे माशरे में, समाज में अमन व शांति कायम हो जाएगी, इख्तलाफात और फसादात ख़त्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ ये जिस बुज़ुर्ग के हम बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर आए हैं, उनका बुनियादी मकसद भी यही था। यही वजह है कि आज हमने देखा कि हिंदू भी हैं यहाँ पर, मुसलमान भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, फ़ुक़रा भी हैं, मशाइख़ भी हैं, उलमा भी हैं और उमरा भी हैं, गुरबा भी हैं। तो बड़ी तादाद में हर किस्म का मखलूत मजमा जो है यहाँ, ये नुमाइंदगी कर रहा था इंसानियत का। इसकी हमें ज़रूरत है, यही पैगाम है। मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से मैं भी उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व बक़ा के लिए काम करता हूँ। पूरे स्टेट में उर्दू ज़बान भी हमें यही सिखाती बताती है, उख़ुवत, भाईचारा, यही उर्दू ज़बान की ख़ासियत है। एक शायर कहता है कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है जिसे ये ज़बान आई। तो ये ज़बान भी तहज़ीब, शाइस्तगी, उख़ुवत, इंसानियत, मोहब्बत, प्यार का दर्स देती है। आपसे गुजारिश करूँगा आपके माध्यम के ज़रिए से कि हम उर्दू सीखें, उर्दू लिखें, उर्दू पढ़ें। शुक्रिया। तो आइए अब बात करते हैं सैयद तनवीर कित्तूर से और सैयद मुन्ना कित्तूर से, जिन्होंने इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। सर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस फंक्शन के बारे में? मतलब इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या था? इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद तो ये था कि गरीब गुरबा की मदद हो सके और साथ ही साथ में हज़रत हस्ते मस्तान शाह वली बाबा का जो उर्स कई सालों से मुन्ना हयात साहब कित्तूर के जानिब से मनाया जाता है और इस मर्तबा जो है बड़े तादाद में, बड़े खुशी व खुजू के साथ मनाया जा रहा है। इस महफ़िल में 2 प्रोग्राम हुए हैं आज। एक तो है हाशमी इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का एनुअल डे है, साथ ही साथ में जो है हज़रत मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह का वो याद में एक लंगर आम रखा गया और मिठाइयाँ वगैरह तकसीम की गई, जिससे गुरबा की मदद हो सके और भी लोग इसे देखकर अपने अंदर ये अखलाक को पैदा करें और लोगों की मदद करने का हौसला और हिम्मत जुटा पाए। और मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम में जितने लोग भी अपने जानिब से जो भी हदिया हो, तोहफ़ा हो, इसमें दिए होंगे तो वो भी उनके लिए भी बहुत खुश नसीबी की बात है। और इस प्रोग्राम का जो सेहरा जाता है वो सैयद मुन्ना कित्तूर साहब को जाता है और इसमें हम भी इनका शाना ब शाना मिलाकर इंशाअल्लाह चलने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल हम लोग इल्म की रोशनी को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है उफ़ाज़ व इकराम हो और हमारे बुज़ुर्गान दीन हो, इनकी याद में एक प्रोग्राम करने का एक कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बोलने का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे फंक्शन के अंदर हस्ते मस्तान बाबा के फंक्शन के अंदर 1990 को 6 ये फंक्शन करते जा रहे हैं। हम आज बड़े पैमाने पे होते जा रहा है। हमारे चीफ गेस्ट प्रसाद अप्पैया साहब, हमारे मौलाना साहब, अल्ताफ़ अल्लूर साहब, आशा मिल्डिगिरी साहब और बहुत से साथी सब मिलकर आके मुझे एक शुक्रिया का मौका दिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये लंगर का जो मस्तान बाबा का जो प्रोग्राम हुआ है बेहतरीन प्रोग्राम है और उसके साथ में कई सारे प्रोग्राम हुए हैं। ये हमारी कौम और मिल्लत को एक करने के लिए बहुत अच्छा स्टेज है।